Good morning, students. Today we start the population interaction. We have done the population, how the population growth is maintained by the biotic and abiotic factor. What are effect of biotic and abiotic factor so far? Now, what is the population interaction means when the biotic component means the biotic means the two living organism or the two species when interact with each other or they are depend upon each other, that is called the population interaction. First of all, every organism is always depend upon the another organism in an ecosystem. No one is, we can say, is there like even the plant those produce their own food, their sustainability and their life history is always depend upon what depend upon the herbivores or the plant eating animals is there, and also on the carnivores. So every organism is depend upon the another organism and make the population interaction, a different type of population interaction we have seen is there. So, in under natural condition, organisms live together. They influence each other. ठीक है, during their life, like directly or indirectly. Directly means when something is eaten, something is there, means taking benefit from the another organism directly. That is the we can say directly, and indirectly, like in case of we can see what happen in ecosystem. The rare example is there, that is grass is eaten by deer and deer is eaten by the lion. Somewhat the lion is get finished, lion tiger is get finished. What happened, डियर सिर्फ डियर रह जाएंगे और डियर क्या करेंगे, सिर्फ ग्रास को खाएंगे, डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो किस पे डिपेंड हो जाएंगे, दे विल डिपेंड अपॉन द ग्रास इज देयर एंड आफ्टर सम टाइम द ग्रास इज आल्सो गेट एक्सटेंट और उससे क्या होगा, तो फिर किसको जो डियर है दे विल डाई ड्यू टू द स्टारवेशन. So this all will be like grass is also the population of the grass or the growth of the grass is also depend upon the tiger is there because they control the population of the deer. So every organism in natural condition directly or indirectly we depend or influence the population of the other organism. The member of biotic community are dependent to one another. So this dependence for like food, interaction, reproduction, protection for any kind of thing is there. So this type of interaction is called the population interaction. We can classify these category like there is a positive interaction, negative. Positive मतलब जैसे हम positive interaction उसको कहेंगे जहाँ सिर्फ we getting benefit, we get benefit, there is no harm we are getting. ठीक है, मतलब जो एक स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज से सिर्फ बेनिफिट ले रही है, दूसरी वाली स्पीशीज ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उससे बेनिफिट भी लेती है और कभी ऐसा होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन में इट विल नॉट गेट एनीथिंग इज देयर in return is there. ठीक है, और negative interaction when one is getting harm and one is benefited or the both it's never be it's very rare that both are get harmed is there, like in competition. So we have there is a species A and B. In case of the mutualism, there is a mutualism is also called as symbiosis. Association is there, means both are associated with each other and they get benefited from each other. Competition where the both will compete with each other and try to overcome one another, मतलब एक दूसरे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं कंपटीशन में. तो नेगेटिव ही होगा, दोनों को नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि वो उसको खत्म करने की सोचेगा और वो उसको खत्म करने की. प्रेडेशन में क्या होता है, दैट इज प्रे एंड प्रेडेटर इज देयर. सो प्रेडेटर क्या करता है, प्रे को खाता है, तो प्रेडेटर को तो फायदा हो गया और प्रे को क्या हो गया, हार्म हो गया. तो हेयर द स्पीशीज ए इज द predator and species B which is getting harm is prey. ठीक है, और फिर आता है parasitism. Again the parasite and host is getting harm and parasite is getting fruit or benefit from the host. Commensalism, that is one is getting benefited and another will not get any reward regarding that is there. ठीक है, and amengalism, the one is getting harmed and another will getting neither harmed or not बेनिफिटेड. ठीक है, मतलब एक को हार्म हो रही है और जो हार्म कर रहे हैं उसको उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इट इज गेटिंग वो उसको हार्म कर रहे हैं. ठीक है, स्पीशीज ए को हार्म कर रहे हैं पर स्पीशीज बी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा. दैट इज कॉल्ड दी एमेंजलिज्म. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इन सब के टाइप्स को
इनके एग्जाम्पल्स को. Now the positive interaction. What is the positive interaction? An interaction with either the both participant जो species हैं उनमें से और या फिर सिर्फ एक को ही participant को क्या मिलेगा, benefit मिलेगा. And neither is harm, because जो जो दोनों जो participants हैं species A and species B किसी को भी क्या नहीं होगा, harm नहीं होगा. तो इसके पॉजिटिव इंटरेक्शन के टाइप कौन से हैं हमारे पास? म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड कॉमेंजालिज्म. फर्स्ट इज द म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. म्यूचुअलिज्म क्या है? इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, डिफरेंट स्पीशीज के, और बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड विद वन अनदर ऑफ टू कैपेबल ऑफ लिविंग, नन ऑफ कैपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली. अब म्यूचुअलिज्म जो ये वाला म्यूचुअलिज्म टाइप है इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी मीन्स दे आर ऑब्लिगेट to live together. Is there means they have to be live together without each other they cannot be capable of living. मतलब वो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, उनको साथ में ही रहना पड़ेगा, जब भी उनका जो उनकी नीड्स हैं दे विल बी गेट कंप्लीटेड. ठीक है. सो हम म्यूचुअलिज्म को क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म आल्सो. एग्जाम्पल जैसे है लाइकन. लाइकन क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड द फंगस, एज वी हैव स्टडीड इन द सिम्बायोसिस आल्सो. सिम्बायोसिस, सो द मेन बॉडी ऑफ द लाइकन जो है वो किसकी बनी होती है? फंगस की. फंगस क्या प्रोवाइड करता है? वाटर, मिनरल, शेल्टर. किसको? एल्गा को प्रोवाइड करता है. ठीक है. और एल्गा को क्या प्रोवाइड करती है? एल्गी क्या होती है? एल्गी इज अ काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर इज देयर हैविंग द ग्रीन एल्गी दैट इज. So manufacture food not only for itself but also for fungus. तो फंगस को फूड मिलता है और एल्गी को शेल्टर, मिनरल और वाटर जो भी चाहिए वो कहाँ से मिलता है? फंगस के थ्रू. नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. As we have studied about the in earlier classes about the nitrogen fixation, what is that? That is the fixation of nitrogen by the bacteria. That is, we can say nitrogen bacteria is there. So, like root nodules of legume, alder and casuarina, the legumes provide food and shelter to the bacteria is there. Nitrogen fixing जो bacteria होता है उसको कौन food देता है? That is in case of the rhizobium bacteria. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो उसको क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है बैक्टीरिया को लेग्यूम्स के अंदर और खाना मिलता है. और जो मेजर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स बाय द बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है राइजोबियम, वो उसको कहाँ पे हैंड ओवर कर देता है? लेग्यूम्स के अंदर. इसीलिए जो लेग्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन रिच होते हैं. दे आर रिच और वी कैन से दे आर प्रोटीन रिच बिकॉज दे आर गेटिंग द नाइट्रोजन बाय द फिक्सेशन ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया. सो बोथ आर गेट बेनिफिटेड एंड बोथ आर नेसेसरी आल्सो, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है दोज आर प्रेजेंट ओनली इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम इज देयर. We have seen also more examples. Now there is a more example of the mutualism, like the case of the mycorrhiza. Mycorrhiza means myco is we can say for the fungus and rhiza is for the root of the plant is there. ठीक है. So it's from the mycorrhiza. So it is an interaction between the fungus and the root are involved. The fungus, the example is Boletus and the root is Pinus. जो रूट है वो क्या प्रोवाइड करता है? फंगस को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है और टू द फंगस एंड हेल्प द प्लांट सॉल्युबलाइजेशन ऑफ मिनरल, वाटर अपटेक. और फंगस किस चीज़ में हेल्प करता है? वाटर अपटेक में, मिनरल्स में, प्रोटेक्शन में अगेंस्ट पैथोजेनिक फंगस उस प्लांट के ना आ सके, और वाटर और फूड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल. द फंगस विल हेल्प द plant is there, the pinus plant is there. So that is the mycorrhiza. Now in case of the termites, जो termite क्या होता है? दीमक. That will just penetrate in our, और जो हमारे जो wood है उसको दीमक लग जाती है. क्या कहते हैं? That is a powder form. It will form the powder is there. So it because it is eating the wood. Termites eating the wood. अब सबसे पहली बात, जो plant cell है, the wood is the plant cell. It's a composition of plant cell and plant cell is made up of the cell wall and cell wall is made up of the cellulose, while the termites have no enzyme for digesting the cellulose. termites के पास क्या नहीं होता है? cellulose digesting enzyme नहीं होता है. तो उसकी हेल्प किसकी हेल्प लेता है फिर? ये flagellates की हेल्प लेता है. flagellates, these are the organisms
which having the cellulose digesting enzyme. So they are present into the termites intestine is there. तो वहाँ से वो क्या करते हैं, दे आर एक्सक्रीटिंग दी cellulose digesting enzyme on the wood and the help to eating the termites. ठीक है. और फ्लैजेलेट्स जो है उनको क्या चाहिए, शेल्टर मिल जाता है. दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली एनीवेयर इज देयर, दे आर ओनली प्रेजेंट इन टू द टर्माइट्स. तो न्यूली है जो टर्माइट्स हैं, अब जो नए टर्माइट्स आए हैं हमारे लार्वा में से, एग में से बने हैं, उनको कहाँ से मिलता है फ्लैजेलेट. दे विल वो क्या करते हैं, जो ओल्ड टर्माइट्स हैं उनकी जो एनाल एरिया है उसको लिक करके वहाँ से फ्लैजेलेट्स को अपने माउथ के थ्रू एंटर करवा लेते हैं अपने अंदर. और फिर जो फ्लैजेलेट्स हैं अगेन दे विल स्टार्टिंग secreting the cellulose digesting enzyme. The next is the ruminant mammals. Same is there. Ruminants क्या खाते हैं, ruminants जो होते हैं वो उनको भी क्या खाना होता है, घास वगैरह ही खानी होती है. They will eating mainly the raw food is there. तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, these mammal के पास भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है उनके इंटेस्टाइन में. वो क्या होता है, रूमिनोकोकस. रूमिनोकोकस जो है बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, सेलुलोज डाइजेशन करता है किसमें, मैमल्स में. दोज आर द काउ, बफलो, दीज ऑल आर द मैमल्स इज देयर. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या मिलता है, शेल्टर. तो दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली. मतलब अगर रूमिनेंट्स में रूमिनोकोकस नहीं होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट द फूड इज देयर. Now the plant animal relationship mutualism. प्लांट एनिमल रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म में क्या था, मतलब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है. पॉलिनेशन में जो होता है वो जो उनकी पॉलिनेशन है वो किसके हेल्प से होती है, एनिमल्स की हेल्प से होती है. एंड इट इज़ अ वेरी डायरेक्टली वी कैन नॉट से दे आर कम्प्लीटली, मतलब जैसे अब तक हमने पढ़ा उनमें, अभी तक जो हमने म्यूचुअलिज्म देखे उनमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली एंड दे आर कैन नॉट लिव टू विदाउट ईच अदर एंड दे आर एसोसिएटेड. वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड, मतलब इट सीम्स टू बी लाइक अ वन ऑर्गेनिज्म इज देयर. तो इस तरह से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं. लेकिन प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप क्या है, उनमें जो इंटरेक्शन है इट्स वेरी नेसेसरी फॉर देयर पॉपुलेशन. मतलब उनकी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको लिविंग के लिए. ठीक है. तो ये जो पॉपुलेशन का है, तो ये क्या होता है, पॉलिनेशन में हमने क्या देखा था, जो इंसेक्ट है वो कैसे पॉलिनेट करते हैं, दे आर टेकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर से नेक्टर लेते हैं और उसके ऊपर क्या फिर उनके बॉडी के ऊपर जो पोलन्स हैं वो चिपक जाते हैं. फिर वो दूसरे फ्लावर से नेक्टर लेने जाते हैं, तो वो पोलन क्या होते हैं, दे विल गेट स्प्रे ओवर द स्टिग्मा. सो दिस इज द रिलेशन, मतलब नेक्टर उनको रिवार्ड मिल रहा है और जो प्लांट है उसको उसकी क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है. सो दिस इज द म्यूचुअलिज्म इज देयर. नाउ देयर इज वन इज वर्ड द कोइवोल्यूशन. कोइवोल्यूशन क्या है, कोइवोल्यूशन का मतलब होता है कि इवोल्यूशन ऑफ बोथ द स्पीशीज टुगेदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इवॉल्व हो रही है. मतलब अगर कोई चेंज आ गया है किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर कोई चेंज आ गया है जिसकी वजह से उसको मतलब या तो वो कोई पर्टिकुलर कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर उसकी बॉडी इस तरह की हो गई है कि वो उसके ऊपर पोलन जो है पहले वाले जो फ्लावर के वो सही से उस पर स्प्रे नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई कलर चेंज आ गया है या कोई शेप चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से जो फ्लावर है दे आल्सो कोइवॉल्व. मतलब वो भी कुछ अपना कलर चेंज करेंगे या कोई फ्रेगनेंस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. तो दोनों का जो है को इवोल्यूशन साथ साथ हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं, मतलब दोनों में जो चेंज आता है, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर और उसके पॉलिनेटेड स्पीशीज में भी टाइटली जो है लिंक्ड होता है. अब हम इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है फिग ट्री. फिग ट्री में क्या होता है, there is a very tight relationship with each other is there. मतलब जो इंसेक्ट है, जो पार्टनर वास्प है, और उसको इनमें ये भी होता है कि मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर इंसेक्ट से आपको पॉलिनेशन हो रहा है तो आप दूसरे किसी इंसेक्ट को अपने पास नहीं आने देंगे. तो इस तरह से जो फ्लावर है वो डेवलप होता है कि कोई और स्पीशीज़ या इस तरह के वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है कि कोई और स्पीशीज़ विल नॉट गेट टू बी दी रिवार्ड विदाउट गेटिंग एनी विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिनेशन इज दैट. तो जो फिग के लिए जो पार्टनर वास्प है, वास्प स्पीशीज, एंड वही आ सकता है पॉलिनेशन के लिए, कोई अदर स्पीशीज नहीं आ सकता. तो जो फीमेल वास्प है वो क्या करता है, एग ले करता है वहाँ पर किसमें उसके जो डेवलपिंग सीड है उसके अंदर,
विद इन द फ्रूट फॉर, और उसकी लार्वा को क्या मिलते हैं, नरिशमेंट. जब वास्प पॉलिनेट अ फिग इन फ्लोरेसेंस वाइल, मतलब जब वास्प जगह ढूंढ रहा होता है उसके सीड्स में, वहाँ पर क्या कि प्रॉपर की मतलब वहाँ पर उसको एग कहाँ पे ले करने हैं, उस टाइम पर क्या होता है, पोलन गेट स्टिक ओवर इट, और फिर जब वो दूसरे प्लांट पे जाता है तो वो पोलन्स वहाँ पे शेड हो जाते हैं. सो दिस विल हेल्प, इससे इससे क्या हेल्प मिलते हैं, जो डेवलपिंग वास्प लार्वा है उसको फूड मिल जाता है सीड से, और फिग को क्या मिल जाता है, पॉलिनेशन. सो दिस इज दी वे. जो ये हमने पहला वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो फिग फ्लावर है वो पॉलिनेटेड हो रहा है वास्प से, जो इस पे वास्प चिपका हुआ है. और जब ये पूरा फ्रूट डेवलप हो गया तो यहाँ पर क्या कर रखा है, वास्प ने अपने जो है एग ले किए हुए हैं. ठीक है, जब व्हेन इट इज डेवलप एज अ सीड एंड स्टार्ट बिकमिंग अ फ्रूट इज देयर, तो वहाँ पर वो ढूंढ रहा होता है ना उस प्लांट के अंदर, मतलब कहाँ पे फ्रूट है कहाँ है. तो इस तरह से ढूंढते टाइम क्या होता है, उस पर पोलन शेड हो जाता है. जो ऑर्किड फ्लावर है उसका जो फ्लोरल पैटर्न, फ्लोरल का जो पैटर्न है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, वो इस तरह का होता है कि वो ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फीमेल फ्लावर, फीमेल बी इज देयर. तो जो मेल बी है दैट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर बिकॉज ऑफ for the female bees there for copulation, and it will provide and there is the pollination will take place. तो सारे जो ऑर्किड्स हैं वो उनके पास नेक्टर भी नहीं होता है, मीन्स दे आर नॉट रिवार्डिंग दी एवरी बीज देयर. जो ऑर्फिस जो मेडिटेरियन ऑर्किड होता है ऑफिरस, वो क्या करता है, वो देता है उनको सेक्सुअल डेसिड टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ बी, मतलब उनको नेक्टर प्रोवाइड करता है एंड टू गेट द पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ बी, पॉलिनेशन देने के बदले में. तो वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बी एन अनकैनी, जो उसका जो एक पेटल होता है वो किस तरह का होता है, फीमेल बी के जैसा होता है. साइज, कलर, मार्किंग जो होती है उस पर, जैसे ये इस पे मतलब ये जो सॉफ्ट फर टाइप जो दिखा रखा है यहाँ पर जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है ये मेल बी, तो उससे क्या होता है, द फीमेल सूडो कॉपुलेट, मतलब सूडो कॉपुलेट मतलब झूठ मूठ की, सूडो मीन्स झूठ मूठ का होता है, और कॉपुलेशन वो मेल जो है फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर रहा होता है with the flower. So during this process, the pollen are dusted from the flower to the bees there, and when this same bee जो है दूसरे flower के ऊपर जाएगा तो pollen are transferred to the stigma is there and pollination will take place. तो यहाँ पर co-evolution बहुत important है, क्योंकि जो मेल है they are not attracted any smell, they are not attracted any color, they are attracted to the flower because it is resemble like a female bee. अगर कोई change female bee में कभी आता है, फीमेल बी जो होती है उसके कलर पैटर्न में कोई चेंज आता है, तो प्लांट हैव टू बी चेंज इट्स पैटर्न आल्सो, मतलब फ्लावर को भी अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मेल है वो उस वाली फीमेल के पास जा रहा है जो डिफरेंट हो गई है, और फ्लावर डिफरेंट हो गए हैं, तो इट हैव टू बी मेंटेन इट्स रिजेम्बलेंस लाइक दैट ऑफ द फीमेल बी. तो उसको साथ साथ इवॉल्व होना पड़ेगा. और ये इवोल्यूशन कैसे चलता है कि बहुत टाइम तक ऐसा हो गया कि वो नहीं आ पा रहा है, तो कुछ ऐसा करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हो जाएंगे कि जो फीमेल है वो उसके जैसा ही दिखने लग जाएगा टू अट्रैक्ट दी मेल बी. तो ये जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं ये किस लिए हैं, मतलब म्यूचुअलिज्म तो हो गया, हमें पता लग गया, अगर पेपर में आता है व्हाट इज म्यूचुअलिज्म गिवन एग्जाम्पल वी कैन इजीली टेल कि ये म्यूचुअलिज्म है. इसके जो इजी एग्जाम्पल है वो आप एक दो लिख देंगे, लेकिन वो डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब सिर्फ एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन में दिया है and they ask the which type of the interaction it is. So we have to know about the every example, general every example that are given in the NCERT कि कौन सा एग्जाम्पल किस इंटरेक्शन के रिगार्डिंग है. और दिस और ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑर्किड और जो फिग है, हाउ द प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप is very important and justify it. So we can give the this one or two example is there to justify the statement is there.